Good morning, everyone. Good morning, ma'am. ma'am. Good morning. Today we are going to continue our GK with lesson number 14. Our GK syllabus with lesson number 14. Think and write. Test your speed. Now, how quickly can you answer these questions? Take the speed test and fill in the score as the time taken. Award 1 point. This is just a question given to you, but I have completed here. You can check it out. And what is the common to each set? हर set में क्या common है? You have to take it out. Clear? One has been done for you. Flipkart, Make My Trip, eBay, Snapdeal, Quicker. What is these? What are these? These are Ma'am, bye. these are the e-commerce companies. These are the e-commerce companies, and they are used for buying, selling on the internet. इंटरनेट के थ्रू आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं इन पे. I hope it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now second, अब इसमें से आपको क्या कॉमन सेट दिख रहा है? Lufthansa, Qantas, Gulf Air, Emirates, PIA, Biman, Bangladesh. What is the common in this? Ma'am, international airline. Airline. International airline. Yes, they are the international airlines. Then third, Mark Zuckerberg, N.R. Narayan, Murthy, Azim Premji, Bill Gates, Steve Jobs. What are they? Who are they means? Ma'am, founder of IIT Companies. Companies. Very good. Founders of IT companies. Founders of IT companies. Now IT, full form of IT. Full form of IT. Information technology. IT full form is information technology. So all of them are the founders of IT companies. बड़ी बड़ी IT companies है, उनके founders हैं ये. Then fourth is डांडिया, घूमर, बिहू, गिद्दा, टैंगटा, चेराव. What are these? They are the Ma'am, dances of Indian states. yes, Indian state. dances of Indian states. Then next is Andy Murray, Dominic Thiem, Sumit Nangal, Pranjesh Gunswaran. They are the Tennis players. Tennis players. yes, good. Yes, they are the tennis players. Then Shillong, Gangtok, Aizawl, Agartala, Imphal, Itanagar, Dispur. They are Ma'am, capital of states in Northeast India. Capital of states in Northeast India. Northeast means Ma'am, north की तरफ east. नॉर्थ और ईस्ट मैम दोनों एक साथ. मैम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. ये नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, और ईस्टर्न पार्ट Yes, कौन ma'am. सा होगा? ईस्टर्न पार्ट कौन सा होगा? दिस पार्ट. दिस विल बी पार्ट. तो ये नॉर्दर्न Ma'am, पार्ट, ठीक है. इस पार्ट्स के ये क्या है? कैपिटल स्टेट ऑफ द स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, इतना उसके ये कैपिटल हैं, कैपिटल्स हैं. क्लियर? शिलोंग, गैंगटॉक, आइजवाल, अगरतला एंड ऑल. I hope it is clear. Northeast part. Yes, ma'am. Okay, fine. Now next is BJP, Congress, BSP, SP, TDP, DMK, AIA, DMK, NCP, TMC, TRS. What are they? ma'am, name of political parties in India. Parties in India. Names of political parties in India. They stand in election. They are all the political parties in India. They stand in election for getting the votes to form the government. Then next, medicine, doses, capsule, cure, treatment. These are what? Medical terms. Medical terms. Yes, they are the Medical term. Yes, they are medical terms. I hope till here it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next part we will continue in our next class. B part. B part or C part we will continue Yes, in our ma'am. next class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, open Yes, your. ma'am. Now we will continue with our history lesson number 4.
History lesson number 4. Open your books. History lesson number 4. 1 minute, Yes, ma'am. Okay, okay. Ma'am, ठीक. wait 1 minute. Ma'am, हाँ wait for 1 minute, please. हाँ हाँ, no problem. Yes, ma'am. Okay, fine. Before this lesson, which lesson we have read about in history? Ma'am, for the Mughal Empire. Ma'am, chapter 4 Mughal Empire. This is the chapter 4 मुगल एम्पायर. इसके पहले हमने हिस्ट्री में कौन सा लेसन पढ़ा? दिल्ली सुल्तान. Delhi Sultan. अच्छा. Ma'am, chapter 3, Delhi Sultan. Ma'am, the Delhi Sultan. Okay. In Delhi Sultan, it was very clear that that was the rule of the sultans, and sultan is an Arabic word which means ruler. है ना? So that we have read about clearly in that lesson that the rule of Muslims were there. Muslim rule was there. All the sultans used to sit. We have read about the Turkish rulers. Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq. All them we have read about. Razia Sultan. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. they were the Muslim rulers, Turkish rulers. Now after them, which rule? You were asking na Mughal हम अकबर बाबर के बारे में कब पढ़ेंगे? Yes, ma'am. After the Muslim rules, the Mughal rule came. Muslim rule के बाद कौन सा रूल आया? मुगल रूल आया. Mughal. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसमें मुगल एम्पायर. यस. Ma'am, what is different between Muslim and Mughal? मुस्लिम रूल तो मुस्लिम सारे टर्किश, दे वर द टर्किश रूलर्स, और मुगल्स जो हैं वो अभी आप लेसन जब आप पढ़ोगे इसके अंदर तो और ज्यादा क्लियर आ जाएगा व्हाट डज द वर्ड मुगल और हु वर द मुगल्स. मुस्लिम्स आपने पढ़ लिया, दिल्ली सुल्तान पढ़ लिया आपने, दे बिलोंग टू द टर्किश रूलर्स. यस और नो? आपने मुगल्स के Yes, ma'am. उसके टर्किश रूल के बारे में पढ़ लिया, कैसे उन्होंने अपना एक्सपेंड किया, उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दी? कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क्स एंड ऑल, है ना? फिर दे कंट्रोल्ड द स्लोली दे हैड द कंट्रोल एंड स्प्रेड द किंगडम्स. अलाउद्दीन खिलजी का रूल बहुत ही पावरफुल रूल था. मोहम्मद तुगलक का रूल पावरफुल था. अब उसके बाद ये मुगल्स, हु वर मुगल्स, कैसे ये मुगल आए, वी विल रीड इट and then the difference will be made clear to you. Clear? Now ruling as a large territory as an Indian subcontinent with the such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Now we are reading in 7th standard. You are reading about medieval history. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In 6th standard you have read about ancient history. पुराना हिस्ट्री, हमारे फोरफादर्स के बारे में हमने देखा, एंसेस्टर्स के बारे में देखा. नाउ इन 7th स्टैंडर्ड यू आर रीडिंग अबाउट मिडीवियल हिस्ट्री. नाउ इन मिडीवियल हिस्ट्री यू विल रीड अबाउट द रूल ऑफ किंग एंड क्वींस. नाउ फर्स्ट वी हैव read about the Delhi Sultans, now the Mughal rulers. Now ruling the large territory of Indian subcontinent. बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ. Now ruling a large territory as an Indian subcontinent. पूरा इतना इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे रूल करना, इट वाज नॉट एन इजी टास्क. इजी टास्क नहीं था इतना बड़ा इंडिया पे रूल करना, जब वहां पर लोग अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे थे, when people of different caste, color, group were living, and in that condition it was very difficult for the rulers of that time to rule or have a control over such a big subcontinent, Indian subcontinent. Clear? Now, it was extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Accomplish means to successfully have control over the large continent. Accomplish means complete, successfully have control over the large continent. तो मिडिल एजेस में जो रूलर्स थे उसके लिए प्रॉब्लम थी एक तरीके से कंट्रोल करना. Now quite in contrast, इसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, to their procedures means to their forerunners. Procedures means forerunners. The Mughal created an empire and accomplished
what had Heathrow seemed possible for only short period of time. अब जो मुगल्स थे, पहले जो इम्पॉसिबल था इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करना जहां पर अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, अब जब मुगल रूल आया तो इट सीम्ड दैट जो पहले थोड़े समय के लिए ही कंट्रोल कर पाते थे रूलर्स इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे, अब मुगल्स के आने के साथ साथ अब पूरी तरीके से कंट्रोल अब मुगल्स ने अपने हाथ में ले लिया था. आई होप इट इज क्लियर. Yes, ma'am. ठीक है ना. Yes. जो पहले डिफिकल्ट टास्क था कि इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट अपने कंट्रोल में लेना, जो रूलर्स के मिडिल एजेस के रूलर्स में बहुत डिफिकल्ट रहा था, अब वो और थोड़े से समय के लिए अगर कंट्रोल में भी करते थे वो इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट, तो सिर्फ थोड़े से समय के लिए कंट्रोल में आता था, बाकी फिर वापस से नोबल्स गवर्नर जो थे वो अपना इंडिपेंडेंट लोकल एस्टेब्लिशमेंट कर देते थे किंगडम. क्लियर. तो पॉसिबल नहीं हो पाता था एक साथ जोड़ करके इतने बड़े किंगडम को रूल करना. अब जब मुगल आए देन इट वाज इन कंपैरिजन विद दोज मिडिल एजेस रूलर्स, इन कंपैरिजन अब ये लोग ने क्या करा, लेटर हाफ ऑफ द 16th century दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. उन्होंने मुगल्स ने अब आकर के अपना किंगडम एक्सपेंड करना शुरू कर दिया आगरा और दिल्ली पर. आई होप समझ में आ रहा है धीरे धीरे. Yes, ma'am. Until in the 17th century, अब 17th century के आते आते they controlled nearly all the subcontinent. 17 धीरे धीरे स्टार्ट कहाँ से करा उन्होंने, आगरा और दिल्ली पे कंट्रोल करके, और फिर धीरे धीरे 17th century तक आते आते उन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे मोस्ट ऑफ द एरियाज वर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स. क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule. अब उन्होंने क्या इम्पोज करना शुरू कर दिया, अपना प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना शुरू कर दिया, प्रॉपर वे से उन्होंने किंगडम अपना रूल करना शुरू कर दिया, और नए नए आइडियाज लेकर आए वो गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए, लोगों को रूल करने के लिए वो नए नए अपने आइडियाज लेकर आए. अच्छे तरीके से पूरा प्री प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया दैट आउटलास्टेड देयर रूल, जो कि उनके रूल को कंटिन्यू करता रहा. समझ में आया उनका रूल कैसे कंटिन्यू रहा, क्योंकि उन्होंने अपना पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करा, उन्होंने न्यू आइडियाज ऑफ द गवर्नमेंट सेटअप करे, एंड दैट आउटलास्टेड देयर रूल, जिससे उनका रूल कंटिन्यू हो सका. लीविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. और उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा, पॉलिटिकल लीगेसी. पॉलिटिकल लीगेसी मींस इनहेरिटेंस, जायदाद, बहुत सारा किंगडम, बहुत सारा अपना इनहेरिटेंस उन्होंने किसके लिए छोड़ा, सक्सीडिंग रूलर्स. सक्सीडिंग रूलर्स मींस उनके बाद जो भी रूलर्स गद्दी पर बैठे दिल्ली की, उनको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पावरफुल सेटअप उनके हाथ में आया. किसके द्वारा दिया गया था वो, मुगल्स के द्वारा. क्लियर. तो अब मुगल्स के बाद जो भी राजा गद्दी पर बैठा वो उनको बहुत अच्छा क्या इनहेरिटेंस मिला. अब इनहेरिटेंस आपको पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस मतलब अपने फोरफादर्स की जो वेल्थ होती है उसमें अपना हिस्सा, फोरफादर्स की वेल्थ में अपना हिस्सा है ना, अपना पार्ट. तो वैसे ही इन मुगल्स ने अपना बहुत बड़ा अच्छा पावरफुल किंगडम एक तरीके से अपने सक्सीडिंग रूलर्स के लिए छोड़ दिया, अपने आने वाले रूलर्स के लिए छोड़ा. फॉर द कॉन्टिनेंट कुड नॉट एग्री, और इस बात के लिए डिसएग्री नहीं किया जा सकता, भारतवर्ष डिसएग्री नहीं कर सकता कि मुगल्स ने बहुत बड़ा किंगडम अपने सक्सीडिंग रूलर्स के लिए छोड़ा था. Now today the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the India Red Fort in Delhi. अब आज हम देखते हैं, now recently 15th of August has gone, Independence Day was celebrated. Yes, ma'am. अब वहां पर Yes. Independence Day पे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ से अपनी स्पीच दी, रेड फोर्ट से. रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. Yes, ma'am. रैम्पेट, रैम्पेट क्या होता है, रैम्पेट इज अ डिफेंसिव वॉल्ड सिटी. डिफेंसिव
वर्ल्ड सिटी। अब कौन सी डिफेंसिव वर्ल्ड सिटी के बारे में बताया जा रहा है? दिल्ली। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो आज हमारे इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते हैं रेड फोर्ट से, जो कि हमारे डिफेंसिव वर्ल्ड सिटी है एक तरीके से दिल्ली, वो रेसिडेंस था कभी पुराने जमाने में। किसका रेसिडेंस था? मुगल एम्परर्स का। कभी पुराने जमाने में यहाँ पर मुगल एम्परर्स रहते थे, मुगल रूलर्स रहते थे। क्लियर? तो एक तरीके से रेड फोर्ट भी किसकी देन है? मुगल्स की। मुगल्स मुगल्स Yes, मैम ma'am. मुगल्स। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया हाउ पावरफुल स्लोली स्लोली मुगल्स वर बिकमिंग द सब कॉन्टिनेंट। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, नाउ हु वर द मुगल्स? अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इतना सारा हमने मुगल के बारे में पढ़ा, इतना अच्छे काम किए, इतना पावरफुल सेटअप किया। नाउ एक्चुअली हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? नाउ द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस। अब मुगल किसके डिसेंडेंट्स थे? किसको बिलोंग करते थे? डिसेंडेंट मींस किसको बिलोंग टू करते? ग्रेट lineages. I'm two great lineages. टू ग्रेट लाइनेजेस मींस दो बड़े एंसेस्टर्स को वो फॉलो करते थे। कौन थे उनके दो बड़े एंसेस्टर्स जिनको वो जिनका वो चले आ रहे थे? Ma'am, Ganesh Khan and Mongol rulers. Ganesh Khan and Ma'am, Mughal Ganesh Khan and Mongol rulers. ओके ओके Ganesh ओके Khan ओके ओके, वेरी or गुड। Mongol. फ्रॉम द मदर साइड, मम्मी की साइड से वो किसको बिलोंग करते थे? चंगेज खान को। इट इज ऑल्सो चंगेज। प्रोनाउंस्ड एज चंगेज खान। क्लियर? Yes, ma'am. मम्मी की साइड को। अब टू ग्रेट लाइनेजेस पूछा गया ना, दो कौन सी बड़े खानदानों को ये बिलोंग करते थे? तो दो कौन से बड़े खानदानों को बिलोंग करते थे? मम्मी की साइड से वो चंगेज खान को बिलोंग करते थे, जिनकी डेथ हो गई थी, चंगेज खान की डेथ हो गई थी 1227 में। 1227 में। And Mongol ruler. Who was Genghis Khan? Underline this. Who was Genghis Khan? Genghis Khan was a Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. Clear? Who was Genghis Khan? Genghis Khan. Ma'am, a Mongol ruler who ruled over a parts of China and Central Asia. Okay. Now this word Mongol is not new to you, I think. Mongol नया वर्ड है आपके लिए? Yes. Yes. No, ma'am, ये chapter 3 में भी आया था. Very good. Remember. Who said Modric? Yes, ma'am. Okay, good. Yes, chapter 3 में आपने मंगोल वर्ड सुना होगा. They were the invaders. वो लूटपाट के लिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के वक्त भी बहुत ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी को परेशान करा, अटैक करके बार उनके रूल में। और फिर मोहम्मद तुगलक के भी स्टार्टिंग रेन में वो लोग आए थे, उसको अटैक किया था मोहम्मद तुगलक की रेन में भी, आपको अगर याद हो तो। Yes, ma'am. Ma'am, इसकी एक टेबल भी थी. हाँ, वेरी गुड. So these Mongol rulers were they were ruling the China and Central Asia, and thus Mughals were belonging to the Genghis Khan from the mother side. मम्मी की तरफ से वो चंगेज खान को बिलोंग करते थे. Now from their father side. Genghis Khan या फिर Genghis Khan? बेटा इसको चंगेज खान भी बोलते हैं, गेंगेज खान भी बोल सकते हैं. क्लियर? अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड का, उसको अलग स्पेलिंग को किसी भी तरह लिख सकते हैं. जैसे मेरा वर्ड है सीमा, सीमा को आप कैसे लिखते हो? SEMA भी कर सकते हो, CIMA भी कर सकते हो, SEEMA भी सीमा कर सकते हो, है ना? तो अलग अलग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बट रहेगा वैसे ही. ठीक है. फ्रॉम देयर फादर साइड, अब फादर साइड को किसको बिलोंग करते थे? दे वर सक्सेसर्स ऑफ तैमूर. तैमूर को बिलोंग करते थे, who died in 1404. तैमूर का डेथ हो गई थी, तैमूर की 1404 को. And Taimur was the ruler of, underline this, who was Taimur? Iran, Iraq. Yes, Taimur was the ruler of Iran, Iraq, modern day Turkey. Modern day of Turkey. आज हम जो टर्की बोलते हैं, टर्किश रूल, टर्की. बेटा ये भी जगह है टर्की. क्लियर? भूमिका मैम ये यूरोप में, हाँ, ये यूरोप में कंट्री. वेरी गुड. भूमिका, you want to ask anything? Ma'am, please enter the Garvita Devra. Okay, fine. Thank you. Taimur died in 1404 and
द रूलर ऑफ इराक, ईरान एंड मॉडर्न डे टर्की। तो दोनों देश Turkey. फ्रॉम द मदर साइड मुगल्स बिलोंग टू चंगेज खान द मंगोल रूलर, एंड फ्रॉम father side they belong to Tamur, that was the ruler of Iraq, Iran and modern day Turkey. Now what happened? However, the Mughals did not like to be called Mughal और मंगोल, मगर मुगल्स को बहुत पसंद नहीं था अपने आप को मुगल कहकर बुलाना या मंगोल साइड से उनको बुलाना। मुगल्स को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं थी कि उनको कोई उनकी मम्मी की साइड से बुलाए, मंगोलियन कह के बुलाए या मुगल करके बुलाए। Why? The reason was behind it. क्यों नहीं बुलाए? Because Genghis Khan's memory was associated with massacre of innumerable people. क्यों? क्योंकि चंगेज खान की जो जैसे जैसे ही चंगेज खान को किस रूप में याद किया जाता था, उनको चंगेज खान को इस रूप में याद करा जाता था कि he was associated with massacre. Massacre means killing of people in large number. Killing of people in large number. Massacre का मतलब होता है killing of people in large number. तो चंगेज खान को कैसे याद किया जाता है, लोग कैसे याद रखते हैं कि वो तो बहुत ही In बुरा killing of large people. क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मारते थे। आपने देखा भी था Again, tell me meaning of massacre of killing of people in large number. Killing of people in large number. तो इस तरीके से एक तरीके से ये मेमोरी अच्छी नहीं है, लोगों को मार काट करके और फिर आप अपना रूल एक्सपेंड कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड. सो दैट इज व्हाई मुगल्स डिड नॉट वांट देमसेल्फ टू बी कॉल्ड एज मुगल्स, और दे डिड नॉट वांटेड देमसेल्फ टू बी कॉल्ड एज मंगोल डिसेंडेंट्स. क्लियर? इसलिए वो नहीं चाहते थे अपने आप को मंगोल डिसेंडेंट्स बुलाने का. देन इट वाज आल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक्स, और ये इन लोगों का लिंक, मंगोलियन का लिंक किसके साथ और था? उज़्बेक्स के साथ. अब उज़्बेक्स कौन थे? ये एक और मंगोलियन ट्राइब थी मंगोल के कॉम्पिटिटर में. क्लियर? मंगोल के कॉम्पिटिटर में एक और ये ट्राइब थी मंगोलियन की ही, उज़्बेक के नाम से. दैट इज व्हाई दे मुगल डिड नॉट वांट देमसेल्व्स टू बी कॉल्ड एज descendants of Mongol. Clear? On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry. उसके अगर नेक्स्ट अदर पार्ट देखते हैं हम, तो मुगल्स जो थे वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते थे. किसके डिसेंडेंट मानते हुए? बिलोंगिंग टू द तैमूर, फादर साइड. फादर साइड. उसका फुल नेम था मैम तैमूरिद एंसेस्टर. तैमूरिड. अब देखो मैं बताती हूँ आपको. तैमूर बिलोंग्स, किंगडम्स का नाम कैसे हो जाता है? खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी, और ये तो खिलजी डायनेस्टी. तो तैमूर का तैमूरिड जो उनका रूल कहलाया गया, तैमूरिड रूल. क्लियर? तो जो मुगल्स थे वो चंगेज खान को ना बिलोंग करके वो चाहते थे कि उनको, वो बहुत फील प्राउड करते थे अपने आप को if they were called from the Timurid. Tamur. Clear? Timurid descendants. Yes. Ma'am, what is meaning of ancestry? Ancestry. What is the meaning of ancestry? Ancestry means forefathers. वो अपने आप को इनके डिसेंडेंट, तैमूर के डिसेंडेंट बनाना ज्यादा पसंद करते थे कि हम इनकी फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं. क्लियर? यस. Excuse me, ma'am. हाँ, यस. मैम उज़्बेक्स भी मंगोल की तरह ही लूट. हाँ, they were also that Mongolian tribe. Clear? Not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398. अब वो तैमूरिड एंसेस्ट्री को, तैमूरिड अपने फोरफादर्स को क्यों बिलोंग करना पसंद करते थे मुगल्स? बिकॉज देयर एंसेस्टर्स, उनके फोरफादर्स जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, उन्होंने क्या करा था? कभी दिल्ली पर कैप्चर किया था, और दे सैट ऑन थ्रोन ऑन 1398. 1398 में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, दिल्ली पर अपना किंगडम स्टैब्लिश कर दिया था. इसीलिए मुगल्स तैमूर फैमिली को, एंसेस्टर मींस फैमिली को बिलोंग करना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन टू द मंगोल फैमिली. क्लियर?
Yes, ma'am. मैम हाँ यस मैम अभी मेरे नेटवर्क इश्यू के कारण अभी बीच में मैम क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या समझाया? बेटा, ये आप ना उस पे जाकर के आप वापस समझ लेना, अभी टाइम नहीं बचा है ना क्लास का। फर्स्ट पैराग्राफ Okay, कौन ma'am. सा फर्स्ट पैराग्राफ बेटा? विच फर्स्ट पैराग्राफ? मैम ये वाला ये who were the Mughals, मैम? हाँ हु वर द Yes, ma'am. हाँ तो हु वर द मुगल्स में यही समझाया है कि मुगल्स बिलोंग टू टू ग्रेट फैमिलीज। फ्रॉम द मदर साइड दे बिलोंग टू चंगेज खान, फ्रॉम द मदर फादर साइड दे बिलोंग टू तैमूर। यही मैंने समझाया। अभी मैं आपको देख रही थी यहाँ पर, आप बैठे थे ना यहाँ पर, कंटिन्यूसली आई एम वॉचिंग यू हियर, जब मैं ये समझा रही थी तब। ओके, इफ यू आर उससे नॉट पहले एबल, मैम अभी 1-2 मिनट पहले। हाँ no problem, if you are not able to follow you can ask me also again. Clear? So from two great Yes, ma'am. families they belong to Mughals, मगर वो अपने आप को चंगेज खान की फैमिली को बिलोंग करना नहीं पसंद करते थे, बिकॉज द नेम ऑफ चंगेज खान इज एसोसिएटेड विद the killing of people, large number killing of people. Clear? That is why, but they rather feel proud to call themselves from belonging to the Tamur family. Clear? Now they celebrated their Yes. genealogy, they celebrated their genealogy pictorially. अब ये अपनी फैमिली जो है, फैमिली फोटो एक तरीके से तैमूर के साथ फोटो खिंचवाना या फोटो पोर्ट्रेट करवाना ज्यादा पसंद करते थे मुगल्स। Clear? Each ruling getting Yes, ma'am. picture made of Tamur and himself. Take a look of figure 2 which is somewhat like group photograph. अब ये ग्रुप फोटोग्राफ दिया गया है यहाँ पर, इसमें बताया गया है कि सेंटर में कौन है, तैमूर बैठे हैं, और ये जो इनके डिसेंडेंट्स थे, इनके बाद जो रूलर्स बने मुगल रूलर्स, ये अपने आप को इनके साथ पोर्ट्रेट में दिखवाना बहुत पसंद करते थे, बिकॉज दे फील प्राउड टू बी देयर तैमूरेड डिसेंडेंट्स। क्लियर? अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो मिनिएचर पेंटिंग, descendants and the Mughal emperor Tamur is in the center and on his right side is his son Miran Shah, बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मींस परदादा बैठे हैं यहाँ पर। उसके बाद आबू साइद बैठे हैं। टू द लेफ्ट ऑफ द तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड उमर शेख, बाबर्स फादर भी बैठे हुए हैं। तो ये सब एक तरीके से एक के बाद एक ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स फोर फादर्स, फादर्स और उनके ग्रैंड चाइल्ड बैठे हुए हैं। क्लियर? इन द पिक्चर फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड इट आउट Yes, ma'am. whom they are. जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, ये सब ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब एंड ऑल, हुमायूं एंड ऑल. Now we'll continue this paragraph about Mughal military campaign in our next class. Till then, Okay, ma'am. read till here. Bhumika, you also, if you are not able to follow anywhere, you can ask me in the next class also. Yes, ma'am. Okay? एक बार आप खुद से पढ़ के हाँ? My doubt is clear now. Okay then, very good. Thank you. Okay. Now, if any other doubt, you can just go through the lesson once again. जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, then also you can ask me, and then that's all for today. Excuse me, ma'am. हाँ, yes. Ma'am, What is meaning Ah, of yes. genealogy?